Hello, my dear student. Today we are going to the discuss about the last chapter of the first term, that is a dispersion of light. It is basically the phenomena used some refraction through a triangular prism. So triangular prism detailed topic is given in the previous chapter, but वो अभी हमने कोर्स में आपके नहीं लिया है. But simple we can see this one is a triangular prism. If incident ray apply on a single surface, on a particular surface, then it is refracted, and then from the second surface it is again refracted, that is called the emergent ray. Means that it is a two times of refraction used in a prism. तो बेसिकली इसकी डिटेल तो हमारे पास प्रीवियस चैप्टर में है. हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक इंसिडेंट रे है, अगर किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है देन तो वो लाइट रे डिस्पर्स होती है इन द फॉर्म ऑफ एमर्जेंट रे. द डिटेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर, इसीलिए अभी इसकी कोई नीड हमारे पास नहीं है. और डिस्पर्जन में सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के बाद जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द न्यू वन. For what exactly the dispersion, just listen carefully. The splitting of white light into its constituent wavelengths is called dispersion of white light. Means we can say when the white light passes through the prism, okay, then it is split into a multiple color of light. The whole phenomena is called dispersion of light, right? That already mentioned in the first paragraph. Ordinary white light is superposition of waves of wavelength extended throughout the visible spectrum. The speed of light in vacuum is same for all wavelengths, but the speed in a material substance is different for different wavelength. देखिए wavelength change होगी तो obviously speed change है. Therefore the refractive index depends on the wavelength. As a result, different colors are deviated by different angles. This is called dispersion of light. So always remember, when the light, again you can see for white light red color is deviated by the minimum value and violet color is deviated by the maximum amount. We can see in the next diagram, you will clear each and everything. This one is a prism and the white light apply on that particular prism, right? Then white color is a combination of, you can say, the 7 colors, right? 7 visible color, we can say 7 visible color. The speed of violet color is minimum. The speed of violet color is minimum, so that it is deviate maximum, right? Or you can say the wavelength is minimum, so it is deviate maximum. And the red color is a maximum wavelength, or you can say the speed of red color is maximum, so it is deviate a minimum. So सबसे ज़्यादा deviate हुआ violet color, उसके बाद सबसे कम जो deviate हुआ, least deviation हुआ हमारे पास red color का. और यहाँ से ये clear हो गया कि एक white light, sunlight और bulb light, ठीक है, हाँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हम इसके लिए वर्ड बेसिकली जो हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर मोनोक्रोमेटिक लाइट रे. इट मस्ट बी नोटेड दैट इन एनी अदर मीडियम आइदर देन वैक्यूम रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन एनी अदर कलर. द वन थिंग इज ऑलरेडी गिवन इन दिस सेक्शन. कॉज ऑफ डिस्पर्जन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यू, ठीक है. ये दैट द मैंने आपसे बोला था वेवलेंथ मिनिमम है, यानी लेस देन ऑफ रेड कलर, ठीक. तो ऑब्वियसली डेविएशन इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. और कंफ्यूज मत होइए, एक से दूसरी थ्योरी डिज़ाइन होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा रेड कलर के रीजन से, ठीक है. सो दैट पॉइंट इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन में ये याद हमें अच्छे से रखना है. सेकेंड, ये ऑर्डर भी ऑलवेज रिमेंबर वी यूज दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. In short, we can say VIBGYOR. We are saying about VIBGYOR. Violet, indigo,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखिए साइंस में बड़ा सिंपल सा मेथड है। साइंस में बिल्कुल कहा जाता है कि आपके सराउंडिंग्स जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा, मीन्स विदाउट एनी रीज़न कुछ नहीं हो रहा है। आपके सराउंडिंग्स जो कुछ भी है, जो कुछ भी डेवलप्ड की गई है, जो चीज़ भी इन्वेंट की गई है, जो चीज़ भी डिस्कवर्ड की गई है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो वो ऐसे नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वी आर यूजिंग अ सिग्नल, राइट, वी आर यूजिंग अ रेड, देन येलो, then green, right? We are using red, yellow and green. If you see, we have chosen the first 3 color from the top, जो मिनिमम डेविएट होते हैं, हमने वहाँ से वो कलर चूज़ किए हैं। रेड, आप कहेंगे ऑरेंज, ऑरेंज की बाद में ऑरेंज छोड़ दिया। आप कहेंगे सर ऊपर से थ्री बोले थे आपने, मैं कहूँगा ऑरेंज की बात भी आएगी अभी। रेड, येलो और ग्रीन। So all the 3 colors deviated minimum comparatively to the other color. So हमने ये सिग्नल्स बनाने में यूज़ किया। रेड कलर फॉग में भी दिख जाता है, ठीक है, और काफ़ी डिस्टेंस से ही हमें ये कलर दिख जाता है। इसलिए जितने भी डेंजर सिंबल्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, ऑल आर द रेड कलर। इस सिग्नल्स में ऑरेंज कलर इस रीज़न से चूज़ नहीं किया गया है कि ऑरेंज कलर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो। सो समटाइम्स जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो सकता है इन द कलर ऑफ येलो एंड ऑरेंज। सो ग्रीन इज़ अ डिफरेंट कलर। सो आपने बट वी हैव ऑलरेडी यूज अ ऑरेंज कलर, ठीक है ना, नियॉन कलर की तरह यूज़ करते हैं। ऑरेंज कलर बिल्कुल डिफरेंट कलर की तरह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जैकेट्स वियर्ड बाय द पुलिसमैन, द लेबरर्स जो हाईवे पे काम करते हैं, आपने वहाँ पर कोन रखे हुए वो देखे होंगे, इस टाइप से कोन रखे होते हैं, ठीक है ना, रास्ते को रोकने के लिए बैरियर की तरह से हमारे कोन, उनके कलर आप ऑरेंज देखेंगे। पुलिसमैन की जैकेट ऑरेंज कलर। जितने वर्कर्स हैं जो हाईवे पे काम करते हैं, ऑल आर यूजिंग द ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर हमने वहाँ यूज़ कर लिया ताकि दूर से ही दिख जाए कि कोई ह्यूमन बींग्स सराउंडिंग या आसपास हैं। सो वी ऑल आर यूजिंग ऑल दीज कलर। वायलेट, इंडिगो, इनको हम अवॉइड करते हैं। चलिए इसके अलावा हम दूसरे सेक्शन पर भी जाते हैं। आप कभी होर्डिंग्स और बैनर्स और बोर्ड्स की तरफ देखिएगा, मैक्सिमम कलर जो आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा वो रेड, वाइट बैकग्राउंड पर रेड, येलो, ऑरेंज, यही कलर आपको मैक्सिमम दिखाई देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनकी विजिबिलिटी क्लियर होती है क्योंकि इनका डेविएशन मिनिमम होता है। सो नाउ डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स प्रिज्म एक्सपेरिमेंट दैट शोज के वाइट कलर ही स्प्लिट होती है और किस तरह से काम होता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर यूजिंग दिस इज वन, दैट इज अ सिलेट। सिलेट मीन्स अ स्मॉल स्क्रीन हैविंग अ स्मॉल होल. When the white light is passing from this, the 3 colors is shown, so red, green and violet, means बाकी सब कलर इनके अंदर ही कॉम्बिनेशन में है. And one screen is again using, and just in front of the green light we have open again a small hole, so you will see only green color light reach to the other prism that is inverted from the previous, right. तो इस एक कलर के लिए इसका डेविएशन ये दिखाया गया है, right. यहाँ देखिएगा इधर से डिस्पर्जन से और ये डिस्पर्जन दिखाया गया है कि एक ही कलर का डिस्पर्जन होगा, फिर ग्रीन कलर स्प्लिट नहीं होगी मल्टीपल कलर्स में. सो दैट्स अ वेरी इजी चैप्टर, यू विल लर्न इन दिस. रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट अगेन, जब 7 कलर्स, एक वाइट कलर 7 कलर्स में ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली 7 कलर का कॉम्बिनेशन अगेन विल गिव द वाइट लाइट. सो यू कैन यूज सी अगेन द डायग्राम ऑफ दिस, दैट इज अ प्रिज्म. Second prism is inverted from the previous one. White light split into all the 7 colors. Only 2 colors are shown, red and violet. The rest of the colors lie inside this red and violet color. And after that, the inverted prism, then all the 7 colors again disperse. Then combined form is again a white. So एक न्यूटन डिस्क भी आपको हम जब फिजिक्स लैब में लेकर के जाएंगे, वहाँ आपको एक न्यूटन डिस्क दिखाएंगे,
राइट, हमारे स्कूल लैब में है। उसमें आप देखेंगे कि एक रिंग, एक डिस्क को हमने 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 कलर में हमने ब्रेक कर दिया। और जब हम इसको रोटेट करते हैं, राइट, काफ़ी फास्ट रोटेट करते हैं, बेल्ट है, बेल्ट के थ्रू इसको रिंग लेकर के हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये 7 कलर्स जो विबग्योर का ऑर्डर है हम लोगों को वाइट कलर की फॉर्म में दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन डिस्क। वी विल सी इन ए फिजिक्स लैब एज सुन एज। प्रे फॉर ऑल। नाउ that the one thing is completed, the 7 colors, dispersion of light. Always remember only the few important phenomena.